So today we'll do the concentration terms. So basic concentration term to study in 11th standard is percent by mass, which is given by a symbol of percentage W by W. Second, percent by volume, given by symbol percentage V by V. Third, mole fraction, given by symbol X. Fourth, molarity, given by symbol capital M. And fifth, molality, given by symbol small m. To start with this, percentage by mass, volume, mole fraction, molality. First, we'll understand what is the component of solution. Okay? Like consider we have an vessel, okay? And we have something called solvent. We have solvent and we add in solvent as dissolute, which on combination becomes solution. Okay? Like for example, if I say sugar in water, तो sugar आपका क्या हो जाएगा? Sugar will become what? Solute. जिसको आप डिसॉल्व करते हो उसको आप सॉल्यूट बोलते हो, और जिसमें डिसॉल्व करोगे उसको आप सॉल्वेंट बोलते हो. तो यहाँ पे जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट है. ठीक है? तो अब इसमें यहाँ पे मैं नंबर दूंगा 2 for solute and 1 for solvent. This is for identification. 2 for solute, 1 for solvent. 2 for solute, 1 for solvent. 2 for solute, 1 for solvent. Like for example, if I say W का मतलब क्या होता है? मास. तो अगर मैं W1 बोलूंगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट. समझा सबको? If I say W2, mass of solute. If I say M1, molar mass of solvent. If I say M2, molar mass of solute. If I say N1, N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स. तो जब मैं N1 बोलूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सेम अगर मैं N2 बोलूंगा तो नंबर ऑफ moles of solute. Is everyone understood 1 and 2 का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे? So 1 for solvent, 2 for solute. 1 for solvent, 2 for solute. Clear? वही अगर मैं x1 बोलूंगा, x1, तो x stand for the mole fraction. X stand for the mole fraction. So if I write x1, that means mole fraction of solvent, and x2 means mole fraction of solute. Clear? Is everyone understood solvent and solute? Okay. So now we can start with the concentration term. So number one term,
percent by mass. Now percent by mass is given by the symbol percentage W by W. So as we calculate the percentage, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों को फाइंड करना है. तो percentage by mass W by W is equal to mass of solute upon mass of solution into 100. तो यहाँ पे W2 का मतलब क्या होता है? W2 is what? The mass of solute. W stand for, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है तो mass of solution, correct? Same, the percentage by volume. Percentage by volume given by symbol percentage V by V. Percentage V by V. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज V by V is equal to volume of solute upon volume of solution multiplied by 100. So V2 stand for volume of solute and V stand for volume of solution. Okay, clear? And the third one is the mole fraction, which is given by symbol x. देखो fraction का मतलब क्या होता है? Fraction is what? Nothing but a ratio. ठीक है? So ratio in terms of mole. So consider we have a solution or we have a mixture of two components, that is N1 and N2. So component 1 या solvent ले लो, component 2 या solute ले लो. Both are present in or measure in terms of mole. So when I write x1, that means what is the fraction of component 1 in the mixture or the solution. So x1 is equal to n1 upon n1 plus n2, where x2 is equal to n2 upon n1 plus n2. ठीक है? तो given component, that means mole fraction का क्या बनता है definition? Moles of given component upon total moles. ठीक है? And if you observe here, if we add both the mole fraction x1 plus x2, क्या मिलेगा मुझे? n1 upon n1 plus n2 plus n2 upon n1 plus n2. The total mole fraction, if you observe, the total mole fraction is equal to 1. Yes or no? Yes? That means total mole fraction of any solution is always 1. Clear? याद रहेगा सबको? याद रहेगा? Next term, molarity and molality. क्या डिफरेंस है molarity और molality में? So molarity, the symbol is capital M and the molality is symbol small m. And difference you will see in the formula. Molarity capital M is equal to number of moles of solute upon volume in liter, where molality small m is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg. आप देख सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर का बहुत बड़ा डिफरेंस है.
मोलारिटी में वॉल्यूम यूज किया है और मोलालिटी में हमने मास ऑफ सॉल्वेंट यूज किया है, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज चेंज, जैसे वॉल्यूम अगर ml में दिया हुआ है तो हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन volume in ml multiplied by 1000. Same in this case, if we convert that mass of solvent from kg to gram, molality is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in grams multiplied by 1000. ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज कर सकते हैं। सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? कौन बताएगा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? यस, एनीवन? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं? वेरी गुड शान, W by M, करेक्ट। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W by M। तो अगर मैं N2 बोलूंगा, N2, तो क्या हो जाएगा? W2 अपॉन M2, करेक्ट। तो मेरा फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml multiplied by 1000. Same molality is equal to mass of solute upon molar mass of solute in W1 in grams multiplied by 1000. करेक्ट। तो मैंने और सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बता दिया है फॉर्मूला दोनों, मोलारिटी एज वेल एज मोलालिटी। नाउ एनीवन, मोलारिटी एंड मोलालिटी कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? Molarity is temperature dependent or independent? Molarity is temperature dependent or independent? Yes, very good. यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है तो टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज होगा, दैट मीन्स मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। एंड मोलालिटी इज temperature independent. Okay, and the unit for molality, unit of capital M, is mole per liter, and the unit for molality is mole per kg. Understood everyone? Everyone understood molarity and molality? So in this question, we have to use the formula for the molarity as mass of solute upon molar mass of solute volume in ml multiplied by 1000. ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है 15 ग्राम, मोलार मास है 40, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो है वो 250 ml दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। कैंसिल किया तो 4 मिला, 4 से ये कैंसिल किया तो 10 मिला, 15 by 10 मतलब 1.5 मोलार। इज एवरीवन क्लियर? So the next topic is significant figure. Now what is significant figure? क्या होता है ये? Significant means the important. बेसिकली ये हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद सम एग्जांपल्स, ठीक है। देखो, सो लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से रूल नंबर 1, ऐसा कोई रूल मतलब आपके कोई आप देखो तो कोई बुक में 4 रूल मिलेगा, कोई बुक में 5, मतलब कुछ भी लाइक, बट मैं यहाँ पे रूल डिसाइड करूंगा बेस्ड ऑन द एग्जांपल। सो रूल नंबर वन इज all non-zero digits are significant, that means जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 9125 ये चारों नंबर क्या है? नॉन जीरो है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना मिलेगा? 4। आप काउंट करोगे 1 2 3 4, करेक्ट। अच्छा,
एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 0.15, 0.15 यहाँ पे नॉन जीरो कितना है, नॉन जीरो कितना है, 2 2 करेक्ट, दिस 1 एंड दिस 2, सो इसका सिग्निफिकेंट नंबर हो गया 2। अच्छा, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2, इन डेसिमल, इन डेसिमल मतलब जहां पे पॉइंट्स में आएंगे, इन डेसिमल नंबर्स, जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, before first non-zero digit is not significant, is not significant। अब इसका मतलब एग्जाम्पल्स में देखो, इफ आई से 0.0031, तो मेरा नॉन जीरो किधर है, ये 3 मेरा नॉन जीरो, तो नॉन जीरो के पहले कितना भी जीरो आने दो, नॉन जीरो के पहले कितना भी जीरो आने दो, वो मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हुआ, 2 करेक्ट, दिस 1 एंड दिस 2। ठीक है, डेसिमल में नॉन जीरो के पहले कितना भी जीरो आने दो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.00005, क्या लगता है, 1 significant 1 करेक्ट, 1 इज द सिग्निफिकेंट नंबर। So next, rule number 3। अब ये एक केस ऐसा हो गया कि जीरो बिटवीन, हमने देखा कि अभी जो प्रीवियस केस देखा था वहां पे कैसा था कि पॉइंट नॉन जीरो के पहले कितना भी जीरो है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, बट जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो digit are significant, are significant। इसका मतलब अगर मैं बोलूं 10007, तो ये देखो 1 एक नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, बट उनके बीच में 3 जीरो है, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज वो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 5 5। समझ में आ रहा है सबको, इफ आई से 205, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 3। चलो नेक्स्ट, रूल 4, इन डेसिमल, इन डेसिमल numbers, zero after non-zero digit, zero after non-zero digit are significant, are significant। now इसका मतलब कि अगर मैं एग्जाम्पल ऐसा ले लूं कि मेरे पास है 0.3500, अभी आप सोचो, 4 significant करेक्ट, 4 सिग्निफिकेंट। रीजन मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है, डेसिमल्स में अगर जीरो नॉन जीरो के बाद आ रहा है तो वो मेरे लिए काउंटेबल है। क्यों, अब इसके पीछे रीजन क्यों, रीजन क्या हो रहा है, इसका मतलब मैं पॉइंट के बाद यहाँ तक वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ, इतना वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, 4 डिजिट तक फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 0.00350, क्या रहेगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर, 4 4, बिकॉज नॉन जीरो के पहले जीरो का कुछ मतलब नहीं है, बट नॉन जीरो के बाद जीरो का इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। अच्छा, एक और रूल तो स्पेशल बोलूंगा, शायद अगर एंट्रेंस में आया तो, इसलिए मैं बता रहा हूँ,
अगर कोई सिंगल डिजिट आपको बोला है, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट का अगर आपको कोई पूछता है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो सिंगल डिजिट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे? अगर मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल 4, तो यहाँ पे आप सिग्निफिकेंट क्या लिखोगे? 1। अच्छा, 4 को मैं 4.0 लिखने जाऊं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 2। 4.00 लिखा तो 3। 4.000 लिखा तो अगेन सिग्निफिकेंट 4। तो ये ऐसे चलता जाएगा, कहां तक लिखोगे? तो अगर सिंगल डिजिट आपको बोला है, सिंगल डिजिट दिया है और बोला है सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो इट कैन बी इनफाइनाइट। क्लियर? समझा सबको? Yes, sir. ओके। अच्छा, एक और होता है, जैसे एवोगैड्रो नंबर ले लो, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 10⁻⁴ Four. का कोई मतलब नहीं होता। 10⁻⁴ कुछ भी होने दो, उसका कोई मीनिंग नहीं है वहां पे। अभी मेरे लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा द फर्स्ट 4 जो मैंने वहां पे लिखा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। सबको समझा सिग्निफिकेंट फिगर? Yes, sir. Sir.